हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Start. This judgment shall dispose of CWP numbers 24003, 22604, 23357 and 26088 of 2018 as common questions of law, and facts are involved in all the petitions full stop. For reference, facts are being taken up from CWP 24003-2018 full stop para. In these petitions, the petitioners are seeking direction to respondent number 2 HPSC to open the website/portal/link for the candidates who have attained the age of 21 years after 1/1/2018 and to extend the date of submission of online applications for recruitment of 166 posts of HCS in bracket executive branch bracket out and other allied services full stop para. Learned State Council has produced a file from the Office of Chief Secretary, Haryana, a perusal of which shows that on 16/5/2018, after receiving requisition from Home and Transport Departments, a fresh requisition was to be sent to the Haryana Public Service Commission for filling up 166 posts of Haryana Civil Services in bracket executive branch bracket out for the year 2017 through competitive examination full stop. In this meeting, it was further decided to make relaxation in the provisions of HCS in bracket executive branch bracket out full stop. It was further clarified that relaxation has been approved by the Chief Secretary as per the provisions of HCS in bracket executive branch bracket out rules 2008 full stop. This file further shows that on 2/5/2018 it has been observed that approval for relaxation in the provisions of the rules be granted for advertising these posts in the months of May/June instead of January full stop. Said approval has been granted by the Chief Secretary on 18/5/2018 full stop. The relaxation has been granted under Rule 30 of the notification dated 13/2/2008 in bracket for short 2008 rules bracket out in bracket annexure P1 bracket out, and necessary to grant this relaxation was that since 31/2018 data with regard to vacant posts was collected from all the departments full stop. This time has been taken to collect the requisition from all the departments full stop para. The above relaxation has been rightly granted to the respondent commission to issue the advertisement in May/June instead of January 2018 full stop. After giving relaxation, the respondent commission in the present case has issued advertisement dated 2/8/2018 in bracket annexure P3 bracket out full stop. In the case of the candidates who became ineligible as on 1/1/2018, the stand of the respondents is that
initially approval was granted to give them benefit of relaxation of age by taking the cut-off date as 1/8/2018 full stop. This decision was taken by the Chief Minister and was to be approved by the Council of Ministers full stop. Before the approval could be granted, this decision was withdrawn. Wide order dated 14/9/2018 in bracket annexure R2 bracket out full stop para. A perusal of Rule 30 of 2008 rules in bracket annexure P1 bracket out shows that the government has been given power of relaxation full stop. The said rule reads as under colon para, where the government is of the opinion that it is necessary or expedient full stop over. तो फ्रेंड्स ये हो चुका 90 की स्पीड में। एक जगह हमने नेसेसिटी को नेसेसरी बोल दिया, ठीक है, एक जगह सिर्फ, ठीक। चलिए, तो इसमें नाम वगैरह कुछ नाम नहीं आया, इसमें नाम वगैरह, ठीक है, कोई भी नाम नहीं आया है। चलिए, तो इसको लीजिएगा डिक्टेशन, बताइएगा कैसा डिक्टेशन लगा ये, ठीक। और कुछ डाउट्स आपके। अच्छा, वो जो सीपीटी हमने दी है उसमें लोग उसको कमेंट करके बता रहे हैं कि एग्ज़ाम हम बता रहे हैं कि 2 दिन अलग अलग होगा। एक्चुअली वो जिस दिन आई है नोटिफिकेशन उसी दिन हमने एक्सेल की वीडियो, एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो हमने बनाई थी, इसीलिए हमने उसमें बोला है कि वो अलग अलग एग्ज़ाम होगा। जबकि अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन टर्म उसमें लिखा है सिंगल जॉइंट स्प्रेडशीट एग्ज़ाम होगा। तो इसका मतलब 90% या ज़्यादातर यही होगा कि जिन्होंने 2 फॉर्म डाले हरियाणा पंजाब, उनका कंबाइंड एक ही टेस्ट हो, ठीक है, स्प्रेडशीट का। इसलिए कन्फ्यूजन में मत रहिए। और प्लस अगर कन्फ्यूजन हो भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो देना ही है ना। अगले दिन भी एग्ज़ाम होना है, उसके एक दिन पहले भी एग्ज़ाम होना है, और एडमिट कार्ड आने के बाद पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर डिक्टेशंस कह रहे हैं, कमेंट्स देख लेते हैं आपके। आप सबको वेलकम। हमने फिर से बताया है कि 18-19 को है, अलग अलग नहीं, सिंगल होगा ज़्यादातर। एडमिट कार्ड का वेट कर लीजिए, ठीक है, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा। और हाँ, एक ही दिन होगा सीपीटी पंजाब हरियाणा का, एक ही दिन होगा अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, ठीक। और जो है देखिए, फर्स्ट डिफेंडेंट जहाँ तक उसकी बात आ रही है कि फर्स्ट एक कमेंट आया है कि फर्स्ट कैसे लिखेंगे या सेकंड कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने क्या बताया आपको, पहले भी बताया है बीच बीच में, उसके बाद भी बता देते हैं। कभी भी फर्स्ट अगर आता है तो इसका मतलब रोमन नंबर्स में आएगा, ठीक है। डेजिग्नेशन रोमन नंबर्स में आती है, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट रिस्पोंडेंट, फर्स्ट डिफेंडेंट और इस टाइप से अगर फर्स्ट पेटिशनर आता है तो इसमें आप न्यूमेरिकल के साथ ST या ND या TH लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेजिग्नेशन रोमन नंबर्स में आते हैं, जैसे सिटी मजिस्ट्रेट या फिर CJM फर्स्ट, CJM सेकंड, इसमें रोमन कैपिटल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट डिफेंडेंट, सेकंड डिफेंडेंट, ये सब कोशिश करिए कि वर्ड में लिख दीजिए, और नहीं अगर लिखना है न्यूमेरिकल में तो ये रोमन में नहीं आएगा, ये ND ST लगा के लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। और सब सेक्शन जो होते हैं वो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ठीक है। सेक्शन ब्रैकेट के बाहर होता है, सब सेक्शन ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक। और कुछ लोगों का ये था कि देख के मैं टाइप करता हूँ शॉर्ट हैंड, तो उनके लिए हमने बोला है कि आप हमसे एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि मैसेज करने में ज़्यादा समझ में हम बताएंगे तो ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, कोलन को डबल डॉट जो ऊपर नीचे होती है उसको कोलन कहते हैं, और जो जो एक डॉट एक कॉमा होता है उसको सेमी कॉलन कहते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क तो आपको पता ही है क्या होता है, क्वेश्चन मार्क आपको पता है। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज या बंद करने का सिस्टम होता है उसको कोट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ चीज़ लिखनी है तो हम बोलेंगे कोट, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर हट रहा है तो हम उसको बोलेंगे डी कोट। जैसे
कोट दिस जजमेंट शैल डिस्पोज ऑफ डी कोट। इसका मतलब ये हुआ कि कोट लग गया, मतलब इन्वर्टेड कॉमा लग गया, फिर उसके अंदर आएगा दिस जजमेंट शैल डिस्पोज ऑफ डी कोट। डी कोट मतलब उसको हमने बंद कर दिया। तो डिक्टेशन ऐसे भी देते हैं, ये लैंग्वेज के ऊपर है कि कौन डिक्टेशन कैसे देता है। किसी को अगर इसकी नॉलेज है तो वो कोड डी कोड का इस्तेमाल करता है, वरना वो इन्वर्टेड कॉमा बोलता है। ठीक है, इसमें परेशान मत होइएगा कि मतलब कोट हमने इसलिए बता दिया कि अगर कभी आपने कोट शब्द सुना डिक्टेशन में तो उसका मतलब कोट नहीं होता है, लिखना नहीं होता है QUOTE। उसका मतलब हमें इन्वर्टेड कॉमा बनाकर उसको क्लोज करना होता है, मतलब स्टार्ट करना होता है। कोट फिर डी कोट मतलब क्लोज करना। ठीक है, तो ये और इसके अलावा और कोई ज़्यादातर मार्क्स नहीं होते हैं, मतलब जो एक्सक्लेमेशन मार्क और ये जो पंक्चुएशंस होते हैं ना, इनके अलावा ज़्यादातर और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया और आप सभी को वेलकम। और चलिए, मोटिवेशन आपको मिला, बहुत अच्छा लगा। वीडियो अगर किसी काम आ रही है तो बहुत अच्छा लगता है। और CPT, हाँ देखिए, CPT में स्प्रेडशीट आएगी। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस स्प्रेडशीट के रहेंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि सिर्फ स्प्रेडशीट का ही एग्ज़ाम हो, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा अगर होता है तो हमेशा ऐसे ही हुआ है, लेकिन कुछ कुछ एग्ज़ाम्स में चंडीगढ़ में वर्ड भी पूछा गया है। इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि इसमें वर्ड आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में वर्ड का कुछ नहीं है। लेकिन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो ग्रुप बनता है ना, उसमें एक इसको ये ऐसे ही इसको आप मान के चलो कि अगर ये आता है तो हमसे क्वेश्चन खाली नहीं जाना चाहिए। पूरा लाव लश्कर लेके आपको जाना है ना, आपको कोई हथियार छोड़ के नहीं जाना है, आपको सब लेके जाना है और तुरंत फायरिंग करनी है। मतलब आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या आ रहा है तो आप फंसे ना, क्योंकि वहाँ सोचने का समय नहीं मिलेगा। 10 मिनट का आपको टाइम, देखिए 10 मिनट भी मेंशन नहीं किया है कि कितने मिनट का होगा, सिर्फ 10 मार्क्स मेंशन किया है। लेकिन इसके पहले जितने भी पेपर हुए हैं उसमें 10 मिनट दिया गया है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए। तो 10 मिनट में आपको 6 नंबर लाना है, तो सोचना नहीं है, अपनी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी कर लीजिए। आप एक्सेल को तो तैयार करिए ही करिए, वर्ड को थोड़ा बहुत देख लीजिए कि वर्ड में आप अगर कुछ आता है, ना आए बहुत अच्छी बात है, बर्डन कम होगा, लेकिन कुछ आता है तो आप फंसे ना। ठीक है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया है आपका। और एक्सेल के लिए हमने वीडियो बना के दी हुई है, एक्सेल तैयार करने के लिए कि एक्सेल कैसे आइडिया लेने के लिए हमने दी है। देखिए, एक्सेल की वीडियो हमने लैपटॉप पे नहीं बनाई है, लैपटॉप पे एकदम प्रोफेशनलिज्म दिखता है। ठीक है, तो उसमें किसी कारणों से हमने नहीं बनाई है, क्योंकि हमारे में लैपटॉप में थोड़ा झाम झंझट है, उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह की दिक्कत है, इसीलिए उसको अब चूंकि जल्दी अब आपको देना भी है, लेट भी हम नहीं लगा सकते हैं। अगर हम लेट लगाएंगे तो फिर तो समय ही हमारे पास नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने सिर्फ आइडिया देने के लिए आपको मोबाइल पे एक्सेल का वर्जन, किसी ने कमेंट किया था कि वर्जन क्या है एक्सेल का, तो हम समझ नहीं पाए थे, इसलिए क्योंकि हमने अपनी एक्सेल शीट की जो सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट, उसमें हमने बोला भी हुआ था कि ये हमने मोबाइल पे बनाई है। तो हम कमेंट को समझ ही नहीं पा रहे थे कि वर्जन किस चीज़ का उनको चाहिए। तो वो वर्जन देखिए, मोबाइल में प्ले स्टोर पे एक्सेल आप डालोगे तो लेटेस्ट वर्जन जो भी आ जाएगा उसी पे हमने किया था काम। वो एप्लीकेशन अलग है, लेकिन उसके अंदर की जो स्प्रेडशीट और जो उसके फंक्शंस हैं वो MS एक्सेल के जैसे ही हैं, इसीलिए हमने उसमें डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ था। ठीक है, तो उसको आप उससे आप आइडिया ले लो क्या आ रहा है। बाकी यूट्यूब में बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, आप उनकी हेल्प ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस समझ में आना चाहिए जो हम बता रहे हैं वो, और प्लस उससे आइडिया लेके आप जितना पढ़ोगे वो आपको घुसना चाहिए दिमाग में। मेरा मेन इंटेंशन ये है, इंटेंशन हमारा ये नहीं है कि हम वीडियो अंधाधुंध आपको बना के देते जाएं। हमारा इंटेंशन ये है कि करेक्ट नॉलेज हम आपको दें। ठीक है, और रही बात उस एक्सेल में हमने ये बताया है कि एग्ज़ाम दोनों अलग अलग होगा, तो वो हो सकता है उस वक्त हमने एक्सेल की वीडियो बनाने के लिए हमने वो वीडियो बनाया था, तो हमें पता चला कि 18-19 तारीख को आ गया है, तो बिना नोटिफिकेशन पढ़े हमने ये कह दिया कि 18-19 को एग्ज़ाम होगा। हो सकता है रिस्पेक्टिवली दोनों अलग अलग एग्ज़ाम हो या फिर बाद में हो। फिर बाद में जो है हमने उसको करेक्ट किया, तो हमने देखा उसमें सिंगल जॉइंट स्प्रेडशीट टर्म यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है कि सिंगल ही एग्ज़ाम होना है। एडमिट कार्ड आएगा तो कब पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर का तो हमने आंसर दे दिया है। हाँ, CPT एग्ज़ाम में सिर्फ एक्सेल शीट आ रही है, लेकिन एडवांस बनने के लिए एडवांस में वर्ड भी तैयार करके जाइएगा। ठीक है, स्प्रेडशीट में मोर वीडियोस, ठीक है, हम बनाएंगे, कोशिश करते हैं कि हम आपको और ज़्यादा वीडियोस बना के दे दें एक्सेल शीट पे, लेकिन फिर आप लोग गुस्सा होगे क्योंकि मोबाइल पे ही बनेगी वीडियो।
ठीक है, थोड़ा आप कमेंट करके बता दो कि मोबाइल पे जो एक्सेल शीट हम बना रहे हैं उसका कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा फंक्शंस की इसमें दिक्कत होती है। लैपटॉप में तो तुरंत फटाफट हो जाता है, लेकिन मोबाइल में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। लैपटॉप में तो आप इज इक्वल टू लगाने के बाद अगर सम लिखोगे तो सम नीचे आपका हाईलाइट हो जाएगा, है ना। लेकिन मोबाइल में ऐसा होता नहीं है, मोबाइल में कुछ अलग सिस्टम चलता है, इस वजह से दिक्कत होती है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दो कि मोबाइल में एक्सेल शीट आपको समझ में आ रही है, सफिशियंट है, तो फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और मैटर 90% लीगल होगा, ठीक है। लेकिन आप जनरल पे भी होल्ड लेके जाना, जनरल को छोड़ मत देना, ठीक है। डिक्टेशन आएगी 400 वर्ड्स की, 20 मिनट टाइपिंग के लिए मिलेगा, ठीक है। और चलिए फिर, कमेंट्स तो पूरे ख़त्म हो गए हैं, और मिलते फिर अगले डिक्टेशन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स बता दीजिएगा, कुछ नई चीज़ें भी बता दीजिए अगर जो हमें बतानी हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, थैंक यू।